Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 15, Sudurlabha Sarva Manorama Vani. Vani means speech, Sarva Manorama, which is liked by everyone, that means over everybody's mind, and Sudurlabha means rarely. It means rare is a speech that wins over everybody's mind. Here the main word is a speech. Here in this lesson they have described different kind of speeches. So about that we are going to learn. Now at the beginning of the 20th century, because of the influence of western languages, the essay as a literary form made an entry into the regional languages of India. So इस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध यानी essay, and it is the regional language of India and become widespread. During this period, scholars of Sanskrit wrote many essays on both traditional as well as modern topics because they have related to Sanskrit language. So that is, it was a traditional also and modern topics because they have written in both the languages. With the passage of time, this essays found a place in a Sanskrit language academics also. So in this, it is a essay found a place in a Sanskrit language. So it was a best invention of Sanskrit language to find out the essay. It is academics also. Among the Sanskrit essayists, those who are writing Sanskrit essays like Pandit Charudat Shastri is a well-known name. He has written beautiful collection of essays in a Sanskrit called Prastava Rangini. So here is a presented an edited version. It is the edited version of his essays titled Sudurlabha Sarva Manorama Vani. So in this lesson, the main idea presented in this essay is that there are various kinds of people in this world. For example, in our family also, we are having a different kind of people. In our society also, if we are taking example of our classmate, so some are very good, some are intelligent, some are average. So in our class also, in our society also, we are having a different kind of people, those who are having a different nature. सो इट इज़ नॉट कन्फर्म कि सबका स्वभाव एक ही होगा. कोई गुस्से वाला होगा तो कोई ठंडे दिमाग का होगा, तो कोई लेज़ी होगा, तो कोई झटपट काम करने वाला होगा. सो दिस काइंड ऑफ वेरिड काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन इज़ नॉट द सेम. किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है. सो इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग होता है. इट इज़ नॉट अ सेम. So as a result, it is difficult to have a speech which can win over everybody. ऐसा कभी रेयरली होता है कि एक ही स्पीच सबको भाती है या तो सबको अच्छी लगती है. Because as I told, all the people are thinking, they are having a point of view according to their nature. तो अपने नेचर के हिसाब से वो सामने वाले को जज करते हैं. सो इट इज़ नॉट ऐसे कोई एक ही स्पीच होगी जैसे कि संत वाणी होती है, जैसे कि कोई सन्यासी की वाणी होती है, कोई साधु की वाणी होती है, वही ऐसी होती है जो सबको अच्छी लगती है या तो समान लगती है. अदरवाइज मैक्सिमम थिंग्स ऑल पीपल आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. सो वो अपने आप को जैसे मानते हैं वैसे ही वह सामने वाले को देखते हैं. सो हैंस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट every poem or writing will be liked by everybody. So it is not necessary also if poems, when we are teaching some poem in our class, so पोएम के जो शब्द होते हैं, जो शब्दों का भार होता है, किसी की समझ में आता है तो उनको अच्छा लगता है, मगर जो पढ़ना नहीं चाहते, जो पसंद नहीं करते, वो लोग उसको पसंद नहीं करते. सो इट इज़ लाइक दैट एवरीबडी, नॉट नेसेसरी दैट पोएम और राइटिंग विल बी लाइक्ड बाय एवरीबडी. सो with speech also it is the same. Hence we should speak in such a way that everybody likes to listen to it and also see that it does not hurt anyone. Of course such people are indeed rare. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको पसंद भी करते हैं, उसको देखना भी चाहते हैं, and those who don't want to hurt anyone. So in this world there are very few people those are respecting to others speech. So here we are going to learn this lesson. So first of all I am reading this paragraph. लोके यदस्तु एकस्मै रोचते तद अन्यस्मै न रोचते.
इत्यतः विचित्ररुचिरं संसारः। एकस्मिन् परिवारे जातानां समान आचारविचाराणां जनानाम् अपि भिन्ना भिन्ना रुचिः भवति। किं पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जनानां वार्ता समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित् मधुरं रोचयते, कश्चित् लवणं, कश्चित् चाम्लं रसमिति। एवं हि कश्चित् काव्यं रसयति, कश्चित् नाट्यं, कश्चित् शिल्पं, कश्चित् च गणितम्। एवमेव कस्मैचित् शृङ्गारः प्रियो भवति, कस्मैचित् वीरः, कस्मैचित् करुणः, कस्मैचित् च हास्यरसः। विरलाय कस्मैचित् जनाय बीभत्सरसोऽपि रोचते इति नानात्वं रुचीनां व्यवस्थितं भवति। This is the essay. It is a Niban. So I have read first paragraph for you. So now we are going to learn word by word. Loke yadastu. Loke for the people. Yadastu. It is a sandhi shabda. Yad vastu. The thing that ekasme rochate. जो एक को पसंद है. रोचते means liking. In this world, the thing that one person liked is not liked by the other. तद अन्य अस्मे. तद it is a sandhi shabda. तत अन्य अस्मे. That for the other न रोचते means other is not liking. रोचते one person is liking, then other is not liking. So we are taking example of our 5 fingers. Our 5 fingers are not same. One is tiny, one is a long finger, one is a medium finger. So it is not same fingers in our hand. In our fingers also there are a difference. तो यहाँ पर एक यह बताया गया है कि लोके यदस्तु एकस्मै रोचते. लोके यानी अबाउट द पीपल, अबाउट इन द वर्ल्ड, द थिंग दैट वन पर्सन लाइक्स. एकस्मै रोचते मीन्स वन पर्सन लाइक्स. तद अन्यस्मै न रोचते, दैट नॉट लाइक बाय other people. इत्यतः so this विचित्र रुचिरयं संसारः. विचित्र रुचि अयम. Here again it is a sandhi shabda, and ityata also it is a sandhi shabda. Ityatah means therefore. Vichitra ruchiha ayam means having variety of a taste. So here in this in this world there are full of people of various taste. जैसे कि एक इंसान की पसंद दूसरे इंसान की पसंद नहीं हो सकती, वैसे भी यह संसार में यहाँ पर वेरियस टेस्ट यानी अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं. एकस्मिन् परिवारे इन द वन फैमिली. जातानाम मीन्स दोज हु हैज born in a one family. समान आचार. So here it is again sandhi shabda. समान आचार विचाराणाम जनानाम अपि. So here they are telling of the people of a similar manners and thoughts. So they don't have a they एकस्मिन् परिवारे in the one family. जातानां समान विचाराणां जनानाम् अपि भिन्न भिन्न रुचि भवति. जनानाम् अपि यानी तरह तरह के लोगों की भिन्न भिन्न रुचि भवति. भिन्न भिन्न मीन्स डिफरेंट रुचि भवति यानी उनकी पसंद अलग अलग होती है. सो हियर अगेन आई एम टेलिंग यू द ट्रांसलेशन दैट persons who born in the same family and having a similar manners, those who has born in a similar manners and culture, otherwise tradition also we can say, कि जो एक परिवार में बड़े होते हैं, एक ही संस्कार से बड़े होते हैं, then the thoughts also have a different taste. They are having a different taste in their saman achar and vichar. Achar and vichar means in a manners and vichar means in a thought. So in the one family also people have a different kind of manners and thoughts according to their nature, according to their behavior. They are behaving to the others. Binna binna ruchi bhavati. They are having a different kind of a taste. So kim punah vibhinneshu. Kim punah means how much more. Vibhinneshu in a different taste. Parivareshu in the family. Utpananam jananam varta. So they are telling that it can be said. What can be said of those who born in a different kind of families? अगर एक परिवार में पले बड़े लोग अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, तो दूसरे परिवारों की हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो दूसरे पीपल जो दूसरी फैमिलियों में बड़े होते हैं, ब्रॉट अप होते हैं, उनकी बात कैसे की जा सकती है. सो अगेन इट इज अ टेलिंग दैट दोज हु आर बोर्न इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली, हाउ
similar manners and thoughts can be there. So here in this line they are telling like this, किम पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नम जननम वार्ता। मीन्स दूसरों की तो बात ही क्या करेंगे, अगर एक ही परिवार के लोग अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं तो दूसरे परिवार के यानी दूसरी फैमिलीज की जो लोग होते हैं वो समान कैसे हो सकते हैं। समान पितृकेशु, समान पितृकेशु मीन्स those who having the same father, putreshu, those who are among the sons of the same father. Kaschita, kaschita means someone, those who are someone, kaschita madhuram rochayate. So in the same family, those who having same parents, one likes sweet, मधुरम रोचते, किसी को मीठा पसंद है या तो बोलते कि किसी को शक्कर वाला पसंद है। मधुरम रोचते यानी उसको मीठा ज़्यादा चाहिए। रोचते मीन्स लाइक्स, सम लाइक्स, someone likes sweet. Then kashchita lavanam, kashchita lavanam means one likes salty, lavanam means salty, those are किसी को खारा भी पसंद है, one likes salty. च आम्लम रसम इति, च आम्लम रसम इति means and some are liking sour, यानी किसी को खट्टा भी पसंद होता है, means one likes a sour. So again I am telling the translation of this line. Among the children having the same parents, one likes sweet, one likes salty and one likes sour. Indeed, in the same way, someone likes, so it is in the same way that evam hi kaschita kavyam rasehati. So someone likes poetry, kavyam means poem or poetry, kaschita kavyam rasehati, kaschit means someone. Same like that, kavyam rasehati, किसी को poem poetry पसंद है, kaschita natyam, someone likes drama. सो हियर इट इज़ ड्रामा के जो 9 रस होते हैं ये भी यहाँ पर बताए गए हैं। सो कश्चित रसयति, समवन लाइकिंग पोएट्री ऑल्सो, कश्चित नाट्यम, समवन लाइक्स ड्रामा, कश्चित शिल्पम, समवन लाइक्स कल्चर, कश्चित च गणितम एंड समवन लाइक्स मैथमेटिक्स। सो हियर कश्चित लाइक मीन्स कश्चित मीन्स समवन लाइक इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो रस होता है कि जो रुचि होती है, जो पसंद होती है, एक परिवार में पले बड़े होने के बावजूद भी सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। एक को पसंद है दूसरे को पसंद आए, किसी को हरा रंग पसंद है तो किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है या तो किसी को तीखा पसंद है। सो पीपल आर हैविंग डिफरेंट नेचर। सो इट इज़ नॉट कन्फर्म कि एक ही फैमिली के हो गए तो उसको एक ही चीज़ पसंद आएगी। सो इन दिस वर्ल्ड देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। सो हियर अगेन एवमेव कस्मैचित् शृंगारः। सो इन द सेम वे, एवमेव मीन्स इन द सेम वे, कस्मैचित् शृंगारः, someone having a liking of to get decorate their self, otherwise श्रृंगार यानी किसी को सजना पसंद है, यानी एवं सेम लाइक दैट कस्मैचित् श्रृंगार, समवन लाइकिंग टू डेकोरेट देयर सेल्फ, प्रियो भवति यानी किसी को सजना सवरना पसंद होता है, कस्मैचित् वीरः, समवन लाइकिंग जो वीरता होती है, ब्रेवरी, सब किसी को बहादुरी पसंद है, कस्मैचित् करुणा किसी को दुखी रहना या उदास रहना पसंद है, यानी किसी को पैथोस में, यानी यहाँ पर अलग अलग 9 रस बताए गए हैं जो एक ड्रामा में एक नाट्य में होने चाहिए, वह 9 रसों की भी यहाँ पर बात की गई है। सो वीर, श्रृंगार, करुण, हास्य रस, ये 9 प्रकार के रस होते हैं जो बताए जाते हैं। सो someone liking hero drama also, someone liking sculpture also, someone liking maths, and in a रस there are श्रृंगार रस, किसी को श्रृंगार रस पसंद होता है, कस्मैचित् वीरः किसी को बहादुरी वीरता पसंद होती है यानी हीरोइज्म पसंद होता है, कस्मैचित् करुणः some of liking pathos, and कस्मैचित् करुणः means pathos, and कस्मैचित् च हास्यः and some of liking humor, otherwise comedy, someone liking. So this is the some kind of जो रस बोले जाते हैं जो उसकी यहाँ पर बात की गई है, which is related to literature. विरलाय कस्मैचित् जनाय, विरलाय कस्मैचित् जनाय means the rare person, those who कस्मैचित् someone, जनाय means people, विरलाय
कुछ रेयर पर्सन ही ऐसे होते हैं जो बीभत्स रसो अपी, इट इज़ अ लिटरेचर का जो ये एक रस है, बीभत्स रस यानी समालायकी, डिस्गस्ट ऑल्सो। सो बीभत्स रस अपी रोचते, किसी को बीभत्स रस भी पसंद होता है। इति नानात्वं रुचिनां व्यवस्थितं भवति, इति नानात्वं, नानात्वं मीन्स इट इज़ अ वेराइटी, व्यवस्थितं रुचिनाम यानी पसंद, व्यवस्थितं भवति, सो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन दिस वेराइटी ऑफ लाइकिंग, इट इज़ एस्टेब्लिश मीन्स यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रस, इंसान की तरह तरह की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसके हिसाब से इंसान की पसंद नापसंद होती है, और उसी हिसाब से वह सामने वाले को भी जज करता है यानी पसंद करता है। तो यहाँ पर ऐसे तरह तरह के रस होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बीभत्स रस होता है, जो भद्दा रस होता है, उसको भी वह पसंद करते हैं। एवं सती, अगेन आई एम रीडिंग द पैराग्राफ। एवं सती एका एव वाणी सर्वस्य मानसं संतोषयितुं न अर्हति, इट इज अ संधि शब्द, न अर्हति, यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति, तस्मै मृदि रुज्वी च वाणी रोचते, न तु कर्कशा कुटिला वा, अतः एतेः सहवार्तावसरे एतादृशी वाणी एव उचिता भवति। परन्तु यः जडः दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवकः भवति, तस्मै तस्याधिपः प्रायः कर्कशां वाणीं वदति, कार्ये च संयोजयति, स्वकीयं प्रयोजनं च सम्पादयति। So here, evam sati, it is the being of, in this case, eka eva vani sarvasya manasam santoshitu na hoti. सर्वस्य मानसम यानी एवरीवन्स माइंड, इट इज ये जो वाणी होती है सबके दिमाग को, यानी सबके दिमाग जो माइंड को वह संतोष नहीं दे सकती, सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती है, बिकॉज एज आई टोल्ड दैट ऑल द पीपल आर लाइकिंग, some people are liking comedy movies, some people are liking tragedy movies, some people are liking heroism movies. So it is depend on the nature that how they are thinking from their mind. So evam sati eka eva vani sarvasya manasam santoshitum na hati. So this being in this case, one particular type of speech cannot please to the mind of all the people. It can be different also. और ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही चीज़ सबको एक बराबर सबको पसंद आए, ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती है। एक ही वाणी सबके मन को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, संतोष नहीं दे सकती है। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृत भवति, तस्मै मृदि रुज्वी च वाणी रोचते। यह खलु मीन्स ही हु इज मोल्डेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द साजेस। सो खलु यानी रियली आर्षेण संस्कारेण, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन्यासी, साजे यानी साधु महात्मा जो होते हैं, दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सन्यासी, दोज हु आर संस्कृत भवति, संस्कृतः भवति, इट इज द संधि शब्द संस्कृतः भवति। सो दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सन्यासीज, तस्मै दे आर मृदि रुज्वी च वाणी रोचते, मृदि रुजि च वाणी, दोज हु आर अफेक्टेड, दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सन्यासी पीपल, साधु पीपल, यानी जो अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं, उसको सॉफ्ट और स्ट्रेट वाणी ही पसंद आती है। यानी जैसे माहौल में इंसान का जो पला बड़ा होता है, या सीखा होता है, या तो जो सुनकर बड़ा होता है, उसी हिसाब से उसका स्वभाव हो जाता है, एंड फ्रॉम दैट दे आर स्टार्टिंग टू डिसलाइक और लाइक समथिंग। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय, जैसे संगत में वो बड़े होते हैं, उसी संगत में वो वही पसंद करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ अ टेलिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीच कैन नॉट प्लीज टू द माइंड ऑफ ऑल दोज हु आर मोल्डेड, यानी जैसे कि जिस वातावरण में वो पले बड़े होते हैं, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द साजेस लाइक सॉफ्ट एंड स्ट्रेट स्पीच, वही उनको पसंद आती है। न तू कर्कशा कुटिला वा, न तू कर्कशा, कुटिला यानी उसको जो कपट की गई बातें होती है, कर्कश यानी जो हार्श लगती है, जो मन में चुभती है, कुटिला मीन्स जो बोलते हैं कि गलत तरीके से, कुटिला यानी जो गलत तरीके से किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, दोज हैविंग अ कनिंग माइंड, दोज हैविंग जो इसको कपटी बोलते हैं।
उसको ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं, बिकॉज दे हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट ट्रेडिशन, सो दे आर नॉट लाइकिंग लाइक दैट, बिकॉज उनका जिस वातावरण में वो उनका जो बोलते हैं कि जो मोल्ड हुआ होता है, उसी हिसाब से वो अपना स्वभाव बनाते हैं, और उसकी पसंद नापसंद भी उसी हिसाब से होती है. सो दे वॉन्ट लाइक हार्श एंड क्रूड वन, यानी जो हार्श एंड क्रूड पीपल होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उनका जो वातावरण है वह एकदम सॉफ्ट और पोलाइट ट्रेडिशन में हुआ है. अतः एते सह वार्तावसरे एतादशी वाणी एव उचिता भवति. अतः एते सह मीन्स with this vartavasare at the time of a talking, yani when they are talking to each other, etadashi like this vani means like this speech eva uchita bhavati, यह उचित होता है. So while conversing with this only such simple or straight people, their people will be proper. उनको कंफर्टेबल लगता है जब वो ऐसे स्ट्रेट और सॉफ्ट लोगों से बात करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये उनकी पैरेलल जैसा लगता है, यानी पैरेलल यानी समानता दिखती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग अ सॉफ्ट नेचर, दे आर ऑल्सो पोलाइट, सो दे ऑब्वियसली दे लाइक टू टॉक विथ अ पोलाइट पीपल. सो इंसान की अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से वह सामने वाले को पसंद करता है. परंतु यह जड़ह मीन्स दोज आर डल, दुर्व्यसनरतः those who are having a very bad habits, अलसः लेजीनेस च सेवकः भवति. तो यहाँ पर यह बताया गया है कि those who are when they are having a servant is dull, but when the servant is dull, lazy, and those are having habit to vice और evil habit, जिसकी आदत गलत संगत होती है या गलत आदत होती है, वो सेवक होते हैं. दे आर सेवक भवति तस्मे तस्य आदिपः. तो ऐसे में तस्य आदिप, इट इज अ संधि शब्द, टू हिज मास्टर. अधिप मीन्स मास्टर. प्रायः मोस्टली मैक्सिमम. कर्कशम वाणी वदति, कर्कशम यानी उसके ऐसे लोग होते हैं उसके साथ ऐसी वाणी का ही प्रयोग किया जाता है, बिकॉज दोज आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग, दोज आर दुर्व्यसन रहता, यानी किसी की बैड हैबिट होती है, जड़ होते हैं, डल होते हैं, अलस यानी लेजीनेस होते हैं, वो हमेशा अपने जो मास्टर होते हैं, यानी तस्य अधिप, वो अपने मास्टरों के द्वारा या अपने मालिक के द्वारा कर्कश वाणी वदति, वो अपने मालिक के द्वारा हार्श वर्ड्स बोले जाते हैं. कार्य च संयोजति, उसका जो काम होता है उनको कंप्लीट करने के लिए बार बार बोला जाता है. सो हियर in this line the translation is that servant is when the servant is dull, the laziness and the those who are having a bad habit, those who are having a evil habit, his master usually employs harsh words, because they are supposed to speak like this, because they are having like this kind of nature, so they will understand in that kind of language. So and engages him in a walk, because other people also knows that they are having a ill habit. So एविल हैबिट जिसकी बुरी आदत होती है, वो सामने वाले को जो सॉफ्ट स्ट्रेट इंसान होता है उसको पता चल जाता है, तो वह भी उसके साथ इस हिसाब से ही काम लेगा और गेट्स इज ओन वर्क डन. वो अपना काम कराने के लिए वो हमेशा ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करेगा, क्योंकि वह भी जानता है कि स्वभाव के हिसाब से ही उनके साथ काम किया जा सकता है. प्रयोजनम च संपादयति, प्रयोजनम संपादन मीन्स they are getting their own work by them. वो उनको उनके काम में बिजी रखते they are engaged by them by their master in their work. So इंसान की जो बोलते हैं कि इम्प्रेशन होती है, जो उसका जो इम्प्रेशन होता है वह खुद पोर्ट्रेट करते हैं. हमारी जो छवि हमें अगर सुंदर बनानी हो, या तो हमें हमारा लेजीनेस दिखाना है, या तो हमारी बुरी आदत दिखानी है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही बिहेवियर किया जा सकता है. सो वी शुड बिकम ऑलवेज पर्टिकुलर इन आवर ओन वर्क. तो हमारी जो इम्प्रेशन होती है, जो हमारी छवि होती है, वह सबके सामने सही उभर के आ सके. सो दिस 2 पैराग्राफ इज शोइंग different kind of natures, different kind of liking, disliking, nature, behavior, and the different kind of people they are showing
be different kind of people also. Those who are सबके साथ उसके साथ ऐसे ही जो बोलते हैं कि उसके साथ ऐसे ही किया जाता है क्योंकि दे आर सपोज टू डू दैट थिंग्स. So here these two paragraph of this two lesson I am completing here. Remaining part of this lesson we will discuss in our next lecture. Till then you have to learn this two paragraph translation in your homework. Thank you.